right? Right. We're talking about ERP. याद है? ठीक है. We talked about a lot of other things. Besides all of other things, we talked about ERP and we talked about the fact that this triangle which we use to understand what kind of information systems exist at different levels in organizations and what kind of decision making is done in organizations. मैं repeat इसलिए करता हूँ so that we can have a start, right? And we talked about the fact that all the operational, all the functional areas of an organization, they started developing their own systems at one point in time when they felt the need of having information systems to make their processes efficient. They started automating the processes that they have, right? But again, soon they realized that automation is not the answer and they had to re-engineer the processes which were there. And again, the processes that were automated, they had to be combined and they had to be integrated together. कुछ याद आ रहा है? Using what? Using EAI, using enterprise application integration systems. Yani if one organization had made a system in one area, let's say this was sales, right? And this was sales information system or sales processing system or whatever. And again, today we call it as point of sale system. So it had to be integrated with finance as well, with accounting as well, with marketing as well, right? So again, in order for these systems to talk to each other, what they did was they made EAI systems, enterprise application integration systems, right? But again, the efficiency issues were compromised. There were a lot of things that need to be worked on. So again, there was this realization that we need to have a system which has a single integrated database that could connect all the functional areas of an organization together. And that was the beginning of what we today call an ERP, which would everything combined, right? That would be ERP, right? यहाँ तक हमने बात की थी किस तरह काम करता है, क्या काम करता है. We will talk about ERP today, right? And we'll take the example of SAP R3, right, as a system that would implement all the things that we've talked about in an organization, and what kind of advantages are obtained when an organization implements. There are different implementation strategies as well. We'll talk about the implementation strategies as well, and what kind of advantages an organization get, and what happens when there is ERP in an organization. That is what we are going to talk about today, right? So ERP. Enterprise resource planning, right? This is, we have started to talk about it, and we know that everything combined is ERP. There has to be a single integrated database. That is what we all know. But what happens? Let's talk about it. It is by definition an expanded effort to combine all the functional areas, marketing, finance, manufacturing, and human resource in a single information system. That is what an ERP is, because there is standardized record keeping. What do we mean when we say standardized record keeping? There is only one way and one format how data is stored. So it is easier for the system to retrieve the data. It is much more efficient for the system to read the data and retrieve the data. And again, the process becomes much more efficient when there is single standardized system to keep record of data, right? And it also permits information sharing right throughout the organization. If finance needs information from marketing, it is pretty easy. If finance needs information from manufacturing, it is pretty easy. If manufacturing needs information from sales, it is pretty easy because there is a single integrated system. Obviously, there are privileges levels that are defined. There are privilege levels that are defined. Whoever is allowed to access such information would be able to access that, right? ऐसा नहीं होता कि कोई भी कहीं से भी information access कर ले. But again, when it comes to this strategic level and a system ERP is being utilized and used,
the top management can drill down to any level to see what is going on. For example, we took the example of that again ATM. Remember ATM, how a manager wants to know about the details of how the ATMs in his or her area are doing, and they wanted to know how many transactions are there in a particular ATM, and they would be presented with the summary of all the data that is there. Right, so ERP would allow the top management to have a look at this, but if they want, let's say this is A, B, C, and D. If they want to, let's say, drill down to D, they can do that. Right? If a manager says, "No, I want to take a look at D," they can drill down to it and they can specifically see what particular types of information, what particular type of information is available, and how can they go about it, what can they do about it. So that is what ERP is all about, and that is what it does. So again, ERP system includes single integrated software program. It has a single database. It is, the information is shared and communicated across the entire organization, automates customer orders, because everything starts from the customer's order. जो चेन रिएक्शन शुरू होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द कस्टमर ऑर्डर. ऑर्डर आता है तो सब चीजें शुरू होती है ना. ऑर्डर आता है तो कैश मेमो निकलता है, ऑर्डर आता है तो इन्वेंट्री से चीज चेक होके काउंटर पे आती है, ऐसा ही है ना. ठीक है, तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑर्डर. तो ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस, ठीक है, ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस, दिस इज व्हाट Amazon by the way has done. Somebody might have the idea of what Amazon order fulfillment process is fulfilled by Amazon. FBA मॉडल पता है Amazon का क्या है? क्या है? हाँ, अब तो पता होना चाहिए आपको, आप लोगों को तो पता होना चाहिए जी. फुलफिलमेंट बाय Amazon क्या है? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी Amazon की हो जाती है बस, यानी तो फिर आप क्या करते हैं इसमें? क्या करते हैं? अपनी इन्वेंट्री Amazon को दे देते हैं. कहाँ दे देते हैं Amazon? उनके वेयर हाउस में. यानी वो अपने वेयर हाउस में आपकी चीज रखते हैं और अपनी वेबसाइट के थ्रू आपकी चीज को एडवर्टाइज करते हैं, मार्केट करते हैं. आप करते हैं या वो करते हैं? वो डिटेल्स डाल देते हैं, फिर उसको ऑप्टिमाइज भी तो करते हैं ना, सो दैट इट कैन कम अप ऑन सर्टेन कीवर्ड्स. ठीक है, और अपनी इन्वेंट्री आप भेज देते हैं. आप कहीं से भी बनवाएं चीज़ें, आप चाइना से बनवाएं, पाकिस्तान से बनवाएं, ईरान से बनवाएं, जहाँ से दुनिया भर से बनवाएं, आप Amazon के हेड ऑफिस में भिजवा देते हैं. ऑर्डर आता है, वो फुलफिल करते हैं, आपको कुछ नहीं करना. आपको क्या करना है? नहीं, आपको सिर्फ पैसे लेने हैं ना. वो 1% काट लेते हैं, जिस तरह दराज 1% काट लेता है. किसी ने किया दराज पे कोई बिजनेस किया है किसी ने? हाँ, क्या किया? चल रहा है. तुम लोग क्यों नहीं करते ये सारे काम? मतलब मुझे समझ में नहीं आती. फिर कब करोगे? नहीं, तुम तो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है जो कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग एक कैसे ब्लैंक बैठे हुए होते हैं. भाई जब तक आप करेंगे नहीं, आपको पता नहीं होगा ये प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं. कल को अगर आपने खुद ये प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा तो कैसे बनाओगे? ऐसे ऐसे लोग बना रहे हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक टेक्नोलॉजी से. आप लोग क्या सिर्फ इसलिए ये डिग्री पूरी कर रहे हो कि डिग्री पूरी हो उसके बाद जॉब करना शुरू कर दो? अब एक प्लेटफॉर्म बनाया है कुछ लोगों ने बाजार के नाम से. इट्स अ B2B प्लेटफॉर्म. क्या करता है? करियाने स्टोर को एक प्लेटफॉर्म देता है ऑर्डर करने के लिए. तो बजाय इसके कि कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव उनके पास जाए ऑर्डर लेने के लिए कि भाई घी कितने चाहिए, तेल कितने चाहिए, चावल कितने चाहिए, चीनी कितनी चाहिए, वो वहीं पे ही बैठे बैठे ऑर्डर कर देता है. एंड दे हैव ऑल द लिंक्स विद ऑल द प्रोवाइडर्स. वो डायरेक्टली एट अ लोअर कॉस्ट उसको प्रोवाइड कर देते हैं. इट्स अ B2B स्टोर फ्रंट. ठीक है, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जब तक आप लोग ये काम करने शुरू नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको समझ नहीं आएगी कि ये प्लेटफॉर्म्स बनते कैसे हैं. टेक्नोलॉजी इज नॉट अ लिमिटेशन ना.
लैंग्वेज नहीं आती, कोई बात नहीं आती। किसी ने मेरे पास आके कहा कि सर लेकिन मुझे ये आती नहीं है, मैं कोई बात नहीं, इट विल टेक ओनली 2 वीक्स फॉर यू टू लर्न अ लैंग्वेज बिकॉज यू हैव द बेसिक्स, इफ यू हैव द बेसिक्स, राइट। बात समझ में आ रही है? तो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होती है। आप कहें नहीं यार कोई प्रोजेक्ट आएगा तो बनाओ, प्रोजेक्ट आप क्या बनाएंगे? एक प्रोजेक्ट बनाएंगे डेटाबेस का। अच्छा भाई वो क्या चीज होती है? हर चीज में डेटाबेस इन्वॉल्व होती है। कंप्यूटर साइंस का प्रोजेक्ट बनाना है तो गूगल से बेहतर एल्गोरिथम बनाओ सर्च का, फिर मैं मानूं। चलो ये बता दो, गूगल जो एल्गोरिथम इस्तेमाल करता है उसका नाम क्या है? गूगल के सर्च एल्गोरिथम का नाम कोई बता दे। हाँ, किसी को नहीं पता? हाँ। यार पेज रैंक लैरी पेज के नाम पे है। लैरी पेज कौन? हाँ, फाउंडर ऑफ गूगल। उसके साथ सर्जी ब्रिन भी था, दोनों पीएचडी कर रहे थे स्टैनफोर्ड में। उन्होंने उस दौरान ये प्रॉब्लम देखा कि यार वेब को हम डाउनलोड कैसे कर लें अपने पास, यानी डाउनलोड तो नहीं कर सकते, उसको ऐसा बना लें कि उसमें सर्च कर सकें हम कोई चीज जल्दी। गूगल का यूएसपी क्या है? आप कहोगे यूएसपी क्या होता है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है? गूगल का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन एंड व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सर्च इंजन्स, इट्स द एफिशिएंसी ऑफ गूगल, इट्स द कवरेज ऑफ गूगल। ऐसा ही है ना? ठीक है, अब उसमें वो और चीजें डाल देते हैं बाद में, मशीन लर्निंग डाल देते हैं, प्रिडिक्टिव टेक्स्ट डाल देते हैं। प्रिडिक्टिव टेक्स्ट इज मशीन लर्निंग, इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, ये किसी उस आदमी ने नहीं पढ़ी हुई जो कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स करता है 3 महीने का, लेकिन वो आपसे बेहतर बना लेता है। क्यों? क्योंकि आप अप्लाई नहीं करते उस नॉलेज को जो कि आपके पास है। आपने, चले मैं ये मान लेता हूं कि आपको किसी ने नहीं पढ़ाया, टीचर क्लास में आता था, आप समझते थे ये कुछ नहीं पढ़ा रहा, आपको फिर भी वक्त तो मिला ना, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चले एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं सिर्फ, आपको पता तो था, आपके पास किताब तो थी भाई, खुद पढ़ लेते, कौन सी रॉकेट साइंस है उसमें? 4 चीजें वो समझ लें, इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं आप। ठीक है, अब आज तो इतने टूल्स मौजूद हैं कि आपको खुद से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उनमें टूल्स में से कुछ इस्तेमाल कर लें जस्ट टू कम अप विद अ सोल्यूशन। ठीक है, पर तो ईआरपी की हम बात कर रहे थे, इंफॉर्मेशन शेयर्ड एंड कम्युनिकेटेड, ऑटोमेट्स कस्टमर ऑर्डर फुलफिलमेंट, बिलिंग, शिपिंग, एंड इट आल्सो अलाउज यू टू ट्रैक योर ऑर्डर्स बिकॉज एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, एवरीथिंग इज there on the system, information data is there on the system, it can be shared across. ठीक है, it can be shared across using internet, intranet can be shared across using extranet and whatnot, right? How SAP R3 works, R3 की हमने बात की थी, release 3 of SAP, इसके बाद अभी R5 पे हैं, but again just to understand how SAP works, we are taking this example of SAP's R3. SAP is an international ERP system. Remember, मैं जब भी ERP कहता हूँ, मैं हमेशा ERP के साथ system कहता हूँ, because it is a system. And what is a system? What is a system? What is the difference between a system and a software? Exactly. System is a set of interrelated components. उसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लोग, जितनी भी चीजें इन्वॉल्व हैं वो सब चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। सॉफ्टवेयर इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जिसमें बारकोड रीडर भी होती है, वो तो हार्डवेयर पीस है ना, बारकोड रीडर जो है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अच्छा पहले an order triggers a chain reaction of events throughout the enterprise. An order, मैंने पहले भी कहा था कि it is an order that triggers a chain reaction. एक ऑर्डर आता है, ऑर्डर क्या है अब जरा समझिए, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, दिस इज ऑर्डरिंग, ये लिखा हुआ है ऑर्डरिंग। ठीक है, अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंटरनेशनल स्नीकर्स कॉर्पोरेशन, आईएससी एक कंपनी है, उसकी एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि वो की है, आगे लिखा हुआ है,
वरना आप कहेंगे कि ये आपने क्या किया। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल स्नीकर्स कॉर्पोरेशन की एक रिटेलर के पास जाती है और उससे कहती है तुम्हें कोई ऑर्डर है, वो कहता है कि हाँ 1000 पेयर्स ऑफ शू फ्रॉम अ ब्राजीलियन रिटेलर। वो ब्राजील में है, ये भी बात याद रखिएगा, ये जो रिटेलर है ये कहाँ है, ब्राजील में है। तो जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो ब्राजील में उस शू रिटेलर से ऑर्डर लेती है, किस चीज का, 1000 जूते, 1000 पेयर्स ऑफ शूज, ठीक है। फ्रॉम हर पोर्टेबल पीसी द रिप्रेजेंटेटिव, अच्छा हर लिखा है इसलिए समझ में आ गई ना। फ्रॉम हर पोर्टेबल पीसी द रिप्रेजेंटेटिव टैप्स इनटू द R3 सेल्स मॉड्यूल। पहला मॉड्यूल कौन सा आया हमारे सामने, R3 सेल्स मॉड्यूल, ठीक है। वो एक पोर्टेबल पीसी पे है विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। समझने की क्या बात है कि SAP SAP is accessible through internet from a portable PC. She taps, logs in to the sales module of SAP's R3, ठीक है। At headquarters which checks the price, अब उसने 1000 जूतों का ऑर्डर दिया है, वो सिस्टम को बताती है भाई 1000 जूतों का ऑर्डर आया है इस रिटेलर की तरफ से। अच्छा, अब उस रिटेलर की हिस्ट्री भी मौजूद है सिस्टम में, क्योंकि वो रिटेलर पहले भी ऑर्डर देता रहा है। अच्छा, उसकी हिस्ट्री में क्या क्या चीजें मौजूद है कि इसने पहले जो ऑर्डर दिया है उसके पैसे वैसे दे दिए, कोई क्रेडिट हिस्ट्री तो नहीं है, इसको कितना डिस्काउंट मिल सकता है, ये सारी चीजें सिस्टम में मौजूद है, ठीक है। which checks the price including any discounts the retailer is eligible for and looks up the retailer's credit history। वो ये भी देख रहा है कि भाई सिस्टम जो है कि इसने पहले कोई पैसे देने तो नहीं है, इसका रिकॉर्ड कैसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन कैलकुलेट्स कि इसको कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए। ये कौन सा मॉड्यूल था, सेल्स मॉड्यूल की हम बात कर रहे हैं। प्रोसेस क्या है, ऑर्डरिंग, यानी ऑर्डर आया, लॉगिन कहाँ किया, सेल्स मॉड्यूल में, किसने, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। नाउ साइमल्टेनियसली, ऑब्वियसली ये सबसे इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको नजर नहीं आ रही होगी, मैं लिख देता हूं, अवेलेबिलिटी। ऑब्वियसली जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, हाँ कब तक मिल जाएगा भाई, ठीक है। आप कोई कपड़े सिलने देते हैं, आप टेलर से सबसे पहले ये पूछते हैं अच्छा कब तक मिलेगा, ऐसा ही है ना। तो टेलर क्या करता है, अंदाजे से बता देता है आपको, अंदाजे से बताता है, फिर कैसे बताता है बताओ ना, क्या, अगर मैं तुमसे ये पूछूं तुम यहां से अपने घर तक कितनी देर में पहुंचोगे, तो कैसे बताओगे भाई, तुम्हें पता है, यू नो द डिस्टेंस, यू नो हाउ मच टाइम इट टेक्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू योर होम, यू नो कि दिन के किस वक्त कितना ट्रैफिक होता है, यू विल कैलकुलेट एवरीथिंग एंड यू विल देन टेल मी अ टाइम, ठीक है। टेलर क्या करता है, टेलर आपको टाइम बताने से पहले ये देखता है अपने दिमाग में मेरे पास पहले के कितने ऑर्डर हैं, कितना टाइम एक ऑर्डर पे लगता है, और अब मैं जो टाइम दे रहा हूँ वो कितने दिन का होगा। या उसने हो सकता है ये चीज़ अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की है, उसने कहा कि भाई अभी पिछले वाले जो आए थे उनको मैंने 16 तारीख दी है, अब आपको 17 दे देता हूँ, ऐसा भी होता है, उससे पहले से कैलकुलेट किया हुआ। बट अगेन SAP R3 क्या करता है, ठीक है, वो इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर, क्योंकि जूतों का ऑर्डर है, अब जूतों के ऑर्डर 1000 जूते आ गए, ऑर्डर कितने जूतों का है, 1000 जूतों का, 1000 जूतों को के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए इन्वेंट्री देखनी पड़ेगी, किस चीज की इन्वेंट्री, एग्जैक्टली कि जूते बने हुए हैं या नहीं है, अगर बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, फौरन फुलफिल कर दें ऑर्डर, अगर बने हुए नहीं है तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं तो जूते बनाने का कारखाना हूं ना, इंटरनेशनल स्नीकर्स कॉर्पोरेशन, अगर बनाने पड़ेंगे तो मेरी फैक्ट्री तो दुनिया में 5 जगहों पे है, कहाँ बनाऊं, कहाँ जगह खाली है, मेरी बात समझ में आ रही, कहाँ जगह खाली है, चाइना की फैक्ट्री में बनाऊं, ताइवान में एक फैक्ट्री है वहां बनाऊं, ब्राजील में एक फैक्ट्री है वहां बना लूं, ठीक है। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कहाँ बनाऊं, हो सकता है ब्राजील में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रही है, जितना डिस्काउंट उसको दे दिया है वो तो उल्टा गले पड़ जाएगा, फायदा क्या फिर, ठीक है।
तो हो सकता है मैं ये डिटरमिन करूंगा यार चाइना में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन कम आ रही है इसलिए चाइना में बनाऊं, हो सकता है, अभी ये तय नहीं किया हमने, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू ऑप्शंस व्हिच द सिस्टम वुड लुक आउट फॉर। क्योंकि सिस्टम का काम ये है कि पूरे प्रोसेस को एक तो ऑप्टिमाइज करे, दूसरा मेरे लिए बेनिफिशियल बनाए ना भाई, मेरे लिए का मतलब कंपनी के लिए, ठीक है। तो सिस्टम अवेलेबिलिटी चेक करेगा, उसने क्या किया, इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर चेक्स द स्टॉक सिचुएशन एंड नोटिफाइज द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दैट हाफ द ऑर्डर कैन बी फिल्ड इमीडिएटली फ्रॉम अ ब्राजीलियन वेयरहाउस। सिस्टम ने ये बताया कि 500 जूते तो ब्राजील का एक वेयरहाउस है वहां पे रखे हुए हैं, स्टॉक कर देते हैं ना वेयर हाउसेज में चीजें, कहता 500 जूते तो यहां से आ जाएंगे। सिस्टम ने ये बताया सेल्स रेप को, सेल्स रेप को पता नहीं था, सेल्स रेप ने सिस्टम में लॉगिन किया, उसने कहा 1000 शूज का ऑर्डर है, अब अवेलेबिलिटी चेक हो रही है सिर्फ, ठीक है। जब चेक अवेलेबिलिटी, बहुत सारी जगहों पर चेक अवेलेबिलिटी का बटन आता है ना एक, जब आप कोई ईमेल अकाउंट बना रहे होते हैं, आप अपना लॉगिन नेम डालते हैं, उसके बराबर में एक बटन आ रहा होता है चेक अवेलेबिलिटी, और वो क्या करता है, आप चेक अवेलेबिलिटी करते हैं तो वो सिस्टम में वो वाले ईमेल एड्रेसेस चेक करता है कि कहीं इस नाम का पहले से मौजूद तो नहीं, ठीक है। तो ये भी अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है। एंड द अदर स्नीकर्स विल बी डिलीवर्ड इन 5 डेज डायरेक्टली फ्रॉम आईसीज फैक्ट्रीज इन ताइवान। अच्छा, ये जो 5 डेज कैलकुलेट हो गए ना, ये 5 डेज में ही सारी कहानी है, इस 5 दिन कैलकुलेट होने में एक बड़ा लंबा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है कि 5 दिन में बन जाएंगे, ये 5 दिन कैसे दे दिए इसने। हालांकि शूज मैन्युफैक्चर होने, कहाँ मैन्युफैक्चर होंगे, ताइवान की फैक्ट्री में, ताइवान की फैक्ट्री में इन्वेंट्री मौजूद है, ये चेक किया, ताइवान की फैक्ट्री में वर्कर्स मौजूद हैं, कोई छुट्टी तो नहीं आ रही उनकी, कोई ईद बकरीद तो नहीं आ रही, आई होप के यू गेट द पॉइंट, उनकी छुट्टियां तो नहीं आ जाएंगी बीच में, ठीक है। ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद फिर उसने बताया कि 5 दिन लगेंगे कैलकुलेट, 5 दिन लगेंगे किसमें, जूते बनने में, ठीक है। ये क्या है, अवेलेबिलिटी डिटरमिन हो गई। अब क्या है, प्रोडक्शन। R3's manufacturing software schedules the production of the sneakers at the Taiwan factory। अब उसने देख लिया ऑर्डर कंफर्म हो गया, उसने देखा ऑर्डर कंफर्म हो गया, उसने क्या किया, 500 जूतों का ऑर्डर जो ब्राजीलियन वेयर हाउस में पड़े थे, कहा कि भाई ये शिप करो यहाँ पे, ये बुक हो गए अब, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता था, आपने डेटाबेस पढ़ा है ना, डेटाबेस में लॉक जो होता है डेटाबेस, उसके बारे में पता है आपको क्या होता है, यानी मैं अगर एक टेबल पे कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा हूं तो क्या आप उसी टेबल पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना भाई। ये एक बात समझिए, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ब्राजील के एक रिटेलर से ऑर्डर ले रही है, हो सकता है इसी वक्त कोई टर्की में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव किसी रिटेलर से ऑर्डर ले रहा हो, उसको भी 500 जूते चाहिए हो, 1000 जूते चाहिए हो, उसने भी देखा, सेल्स रेप ने टैप किया, सिस्टम में लॉगिन किया, उसने देखा ऑर्डर जब प्लेस कर रहा है, दोनों क्वेरीज एक ही वक्त में गई, दो, इसको टर्की में 1000 जूते चाहिए, उसको ब्राजील में 1000 जूते चाहिए। ये भी हो सकता था कि वो टर्की वाले को कहता कि नहीं तुम ब्राजील से ले लो, क्योंकि जूते तो बने हुए हैं, जो पहले लॉक करेगा और जो पहले कंफर्म करेगा ऑर्डर, ऑर्डर तो उसके पास जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही ऑर्डर दो तरफ से आए, हमारे पास स्टॉक में मटेरियल जो है वो दोनों के लिए बुक हो जाए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली देयर विल chaos, ठीक है। तो ये भी सिस्टम को ख्याल रखना होता है। Meanwhile, alerting, अच्छा, manufacturer schedules the production of sneakers at the Taiwan factory. Meanwhile, alerting ISC's warehouse manager in Brazil to ship the 500 purple tennis shoes। अच्छा, अब हमें पता चला कि ये जूते कौन से थे, कौन से जूते हैं ये, पर्पल टेनिस शूज, to the retailer. An invoice gets printed in Portuguese. Why in Portuguese? हाँ, अच्छा, ब्राजील में, लेकिन what does it tells us about the system?
हाँ हमें, और ऑब्वियसली जब पोर्तुगीज में प्रिंट हो रही है तो जो करेंसी में जो करेंसी होगी इनवॉइस की वो कौन सी होगी? डॉलर। फिर जो भी ब्राजील की करेंसी होती है वही होगी ना। इसका मतलब ये है कि द सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड द सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीपल करेंसीज। ये समझने की जरूरत है। ब्राजील, ताइवान, हम हैं कहाँ? ब्राजील में। ऑर्डर प्लेस कहाँ हो रहा है? ताइवान में। ऑर्डर कहीं और भी प्लेस हो सकता था क्योंकि हमारी तो बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। द सिस्टम इज एबल टू सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस and not just multiple languages but the system is able to support multiple currencies। यानी सिस्टम जो है वो कनेक्टेड है किसी सेंट्रल बैंक से भी जो कि करेंसी के कन्वर्जन रेट्स उनको रियल टाइम में प्रोवाइड करता है। दैट इज हाउ द इनवॉइस इज गोइंग टू गेट प्रिंटेड। यानी मैंने एक चीज ऑर्डर की, मैंने कहा इतने मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, वो मुझे प्राइस कोट करेंगे ना, वो प्राइस कोट मुझे करेंगे मेरी करेंसी में, लेकिन उनको जो प्राइस आ रही है वो चाइनीज करेंसी में आ रही है। तो कहीं ना कहीं तो कन्वर्जन हो रही है ना, कुछ तो हो रहा है, रियल टाइम में हो रहा है। वो मुझे अगर गलत कन्वर्जन करके दे रहे हैं, वो कहें कि जी वो डॉलर, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, डॉलर 168 पे होगा, मैं कहूँ नहीं यार डॉलर 168 का थोड़ी, डॉलर तो 153 का हो गया। वो कहे अच्छा हमारा सिस्टम अपडेटेड नहीं है। तो हाउ वुड आई फील कि यार ये कैसा सिस्टम है भाई? It needs to be updated, it needs to be connected to the system, it needs to be connected to the again some exchange, some bank, जिससे पेमेंट हो भी सकती हो और करेंसी एक्सचेंज रेट्स जो है वो भी मुझे ठीक मिले। अच्छा, इनवर्ड्स प्रिंटेड इन पोर्तुगीज लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेजेस, ये भी हो सकता है और ये होता है कि इस सिस्टम के साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोई पेमेंट गेटवे लिंक्ड हो। क्या लिंक्ड हो? कोई पेमेंट गेटवे। ये क्या होता है? पेमेंट गेटवेज का नाम सुना है? पेमेंट गेटवेज क्या होता है? कोई पेमेंट गेटवे का नाम बताइए, दो का नाम बताएं, दो का नाम बताएं। एक हो गया पेपैल, दूसरे का नाम बताएं। स्ट्राइप, और तीसरे का? चलो गुड, ये तो बताया, शुक्र। ठीक है, टू चेकआउट है, पेयोनीर है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग पेयोनीर इस्तेमाल करते हैं, टू चेकआउट एज वेल एंड देयर आर मेनी अदर्स। अब पेमेंट गेटवेज लोकल बैंक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एचबीएल भी प्रोवाइड करता है, यूबीएल भी प्रोवाइड करता है। उनकी फीस थोड़ी ज़्यादा है, हमें लगती ज़्यादा है, लेकिन अगेन वो लोकल है बेसिकली। ये क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन अभी तक? ठीक है ना, ये क्या है? अच्छा, ये लिखा मैन पावर है, मैं ह्यूमन रिसोर्स लिख रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स। अब क्या, ऑब्वियसली जूते बनाने के लिए आप एचआर चेक कर रहे होते हैं ना, ठीक है, कि वो लोग अवेलेबल हैं जो जूते बनाएंगे या जो जूते मतलब फिनिश करेंगे। ठीक है, तो जो R3 का एचआर मॉड्यूल है वो आइडेंटिफाई करता है एक शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स टू हैंडल द ऑर्डर एंड अलर्ट्स द पर्सनल मैनेजर द नीड फॉर टेम्परेरी वर्कर्स। उसने कहा यार लोग तो छुट्टी पे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, 4 लोगों को तो कोविड हो गया, वो तो है ही नहीं, और बाकी 40 को क्योंकि वो उन 4 से कांटेक्ट में आए थे हमने छुट्टी दे दी है, अब वर्कर नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये सारा काम पहले हो रहा है बाय द वे, ये सारा काम वो जो 5 दिन का टाइम दिया था ना वो कैलकुलेट होने के दौरान हो रहा है, ये याद रखिएगा। ये सब कुछ होने के बाद 5 दिन दिए जाए, ऐसा थोड़ी है कि हाँ ठीक है 5 दिन बाद दे लेना, अब उस 5 दिन में हम ये करते फिर रहे हैं कि यार वर्कर नहीं है, वर्कर मंगाओ 5 दिन में काम करके देना, ऐसा नहीं है। ये सारा टारगेट ही सेट पहले, ये सारा काम पहले हो चुका है, बाद में 5 दिन का टारगेट सेट हुआ। ठीक है, तो रिसोर्स मॉडल, ह्यूमन रिसोर्स मॉडल आइडेंटिफाइज द शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स एंड आइडेंटिफाइज इट एंड टेल्स द पर्सनल मैनेजर द नीड टू अरेंज अ टेम्पररी वर्कर। अच्छा, अब सिस्टम के पास टेम्पररी वर्कर्स की लिस्ट मौजूद है एचआर मॉड्यूल में, वो वर्कर जिनको हम ऑन टेम्पररी बेसिस हायर कर लेते हैं, वहां पे उनके रेट्स लिखे हुए,
उनका स्किल लेवल मेंशन्ड है और उनकी अवेलेबिलिटी मेंशन्ड है। हम सिस्टम से ही उन लोगों की लिस्ट निकालते हैं और उन लोगों को बुला लेते हैं, कहते हैं आ जाओ तुम्हारे लिए काम आया है, ठीक है। वंस दे कंफर्म देयर अवेलेबिलिटी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ परचेसिंग, परचेसिंग obviously is about inventory management, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज व्हेन इट कम्स टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैं इस क्लास में भी सप्लाई चेन के हवाले से बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं किया, हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में होपफुली, ठीक है। परचेसिंग इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज। कैसे होता क्या है, बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो पहले एमआरपी सिस्टम्स हुआ करते थे एक जमाने में, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स, फिर इनमें अपडेशन हुई, एमआरपी 2 आया, ठीक है। एमआरपी 2 के बाद फिर हम ईआरपी की तरफ गए, और ईआरपी जो है वो एमआरपी से ही बेसिकली नाम जो है मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग के बजाय पूरे इंटरप्राइज की रिसोर्सेज की प्लानिंग कर दी जाए। तो मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, अब ये कहता है मटेरियल प्लानिंग मॉड्यूल कि जी इट्स टाइम टू रीऑर्डर पर्पल डाई, रबर एंड शू लेसेस। हमारे पास कितने जूते बनाने में, कितने जूते बनाने, 500 जूते बनाने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, एक तो कलर नहीं है, पर्पल डाई नहीं है। पर्पल डाई का क्या करेंगे, पर्पल टेनिस शूज बनाने हैं ना, और रबर नहीं है और शू लेसेस नहीं है। सिस्टम वहीं से ऑर्डर प्लेस कर देगा क्योंकि सिस्टम इज कनेक्टेड टू द सप्लायर्स एज वेल। हो सकता है पर्पल डाई कोई और सप्लायर प्रोवाइड करता हो, कलर कोई और प्रोवाइड करता हो, रबर कोई और प्रोवाइड करता हो, शू लेसेस कोई और प्रोवाइड करता हो। सिस्टम इज कनेक्टेड टू ऑल दीज सप्लायर्स एज वेल, ठीक है। अब देखें जो सप्लाई चेन है, लेट्स से इट स्टार्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करके क्या करता है इस प्रोडक्ट का, डिस्ट्रीब्यूटर को देता है ना भाई, ऐसे ही थोड़ी मैन्युफैक्चरर अपनी फैक्ट्री के बाहर सेल नहीं लगाता। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद कहाँ आता है, हाँ, होलसेलर, फिर रिटेलर, और फिर नहीं, कंज्यूमर के पास होता है। कस्टमर ये सारे भी हैं, जरा सा फर्क समझ लीजिए, ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो कस्टमर्स। कंज्यूमर में और कस्टमर में क्या फर्क होता है, जोर से बोले, ठीक है, आप दोनों ने ठीक कहा। कंज्यूमर वो होता है जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, जो एट द एंड यूज करता है। कस्टमर तो रिटेलर भी है ना, यानी अगर होलसेलर से रिटेलर कोई चीज खरीद रहा है तो होलसेलर का कस्टमर कौन हुआ, रिटेलर। अगर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से कोई चीज खरीद रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर का कस्टमर कौन हुआ, होलसेलर। अगर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कंपनी से, मैन्युफैक्चरर से लेके प्रोडक्ट, तो मैन्युफैक्चरर का डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर हुआ ना, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर, ये बात क्लियर है। अच्छा, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, और हम बात कर रहे हैं सप्लायर की। जैसे इसको मैन्युफैक्चरर को पता चला कि वी आर शॉर्ट ऑन सम प्रोडक्ट्स, वी आर शॉर्ट ऑन लेट्स से पर्पल डाई, वी आर शॉर्ट ऑन कलर, वी आर शॉर्ट ऑन रबर, वी आर शॉर्ट ऑन शू लेसेस। इसके क्या है, सप्लायर्स, बहुत सारे सप्लायर्स हैं, सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3 एंड सो ऑन। ऐसा हो सकता है ना, एक मैन्युफैक्चरर के बहुत सारे सप्लायर हैं। लेट्स से ये मार्कर बनाती है एक कंपनी, इस मार्कर बनाने वाली कंपनी का नाम है डॉलर। ये मार्कर बनाती है, प्लास्टिक नहीं बनाती। इसको प्लास्टिक कोई और कंपनी प्रोवाइड करती होगी। जो प्लास्टिक कंपनी प्रोवाइड करती है ना, वो क्या है,
वो प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरर है, जरा से समझो, यानी उसके लिए इस सप्लायर के लिए ये पूरी चेन इसी तरह से है। बात समझ रहे हो? यानी ये सप्लायर जो है ना, इसके लिए ये पूरी चेन इसी तरह से, सप्लायर भी तो एक मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर भी तो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, सप्लायर भी तो कहीं से ऑर्डर लेता है, सप्लायर को भी तो प्रोडक्ट बनाने के लिए किसी चीजों की सप्लाई की जरूरत होती है। बात समझ में आ रही? ठीक है, जो प्लास्टिक बनाता है वो प्लास्टिक बनाता है, वो प्लास्टिक जिस केमिकल से बनता है वो केमिकल नहीं बनाता, वो केमिकल उसको कोई और प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड, अभी बताता हूँ उसको कहते क्या है। देयर इज दिस सप्लायर एंड देन देयर इज दिस सप्लायर सप्लायर एंड देन देयर इज दिस सप्लायर 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 and then there is this supplier 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 and it goes on until you reach the raw source. बात समझ में आ रही? बिल्कुल इसी तरह से ये भी है। सप्लायर 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 सप्लायर्स सप्लायर्स suppliers 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 and it goes on until you reach the raw stage. क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अच्छा अब जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि बहुत दफा ऐसा होता है आपके घर में आपसे कोई चीजें मंगवाते हैं, कभी खाना बनाया आप लोगों ने में से? हाँ नहीं, इतने फखर से बता रहे हो, इतनी शर्म की बात, अभी तो बनाओ। हाँ, अंडा बनाना खाना बनाना है क्या? इसमें ये बताने की क्या जरूरत थी, बैचलर हैं बनाते रहते हैं, तो क्या शादी हो जाएगी तो नहीं बनाओगे? हाँ, कभी बना के बेगम को खाना खिला देना, इसमें कौन सी मुश्किल बात है? हाँ, नहीं बना दोगे तो कोई एहसान नहीं करोगे। अच्छा चलो खैर, तो जब आपने खाना बनाया, लेट से आपने कहा कि भाई 10 लोगों के लिए खाना बनाना है, लेट से दावत है घर में 10 लोगों की, 10 लोगों के लिए खाना बनाना है, आपको बस फौरन 2 घंटे पहले ये पता चला कि दावत 10 लोगों की नहीं थी, दावत थी 50 लोगों की। अब आपके तो हाथ पैर फूल गए, आपने कहा यार ये तो क्या हुआ, ये तो मेरे पास ना रॉ मटेरियल है ना मेरी तैयारी है, अब आपको और रॉ मटेरियल चाहिए ना। ठीक है, होता क्या है कि अगर कोई भी स्मॉल चेंज आ जाए इधर, जो कि ड्राइव होती है यहाँ से, कस्टमर ने पहले ऑर्डर किया था 500 जूतों का या 1000 जूतों का, अब ऑर्डर बन रहा है, कस्टमर ये कह दे कि नहीं ऐसा करो मुझे ये 5000 जूते कर दो। अच्छा, मैन्युफैक्चरर ने ऑर्डर किए हुए हैं, उसके पास 500 जूते बनाने थे, 500 तो वहां से शिफ्ट करा रहा था, 500 जूते बनाने के लिए उसने डाई और वो सब चीजें ऑर्डर की हुई थी। बात और से सुनना जरा, उसने 500 जूते बनाने थे जिसके लिए उसके पास पर्पल डाई, रबर और शू लेसेस कम थे। उसने कहा यार ये इतने इतने ऑर्डर कर दूं, क्यों? क्योंकि मुझे ऑर्डर कितने का फुलफिल करना है, 500 का। उसने ये ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर आ रहा था, इतने में कस्टमर की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि नहीं यार ये 1000 नहीं 5000 कर दो जूते, बहुत डिमांड आ रही है। अब ये पूरा रिपल इफेक्ट है, ये पूरा इधर तक गया, ये ऑर्डर आ रहा है, ये क्या बोलेंगे? ये कहेंगे कि यार एक साथ ही बता देते हैं हमें रॉ मटेरियल कितना, इतना नहीं इतना लाना था, अब तो दूसरा चक्कर होगा, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब तो दूसरा चक्कर होगा, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सब यही करेंगे। दिस चेंज, दिस रिपल इफेक्ट, दिस स्मॉल चेंज, this small change in demand causes a ripple effect which is called the bullwhip effect. ठीक है, this small change in demand causes a ripple effect through the entire supply chain and it is called the bullwhip effect. ये बात क्लियर है? ठीक है, सप्लायर 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 एंड इट गोज ऑन। ठीक है, तो हम कह ये रहे थे कि जो मटेरियल प्लानिंग मॉड्यूल है ना, वो लिंक्ड है इन सप्लायर से भी। ऐसा थोड़ी होता है कि उसको ऑर्डर करना है और उसके बाद वो ये कोशिश करें कि वो सप्लायर से फोन पे बात करें यार हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, आ जाओ देखते हैं कितने में देते हो तुम। दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ ऑल द थिंग्स, क्योंकि उनके पास वो रिटेलर की भी हिस्ट्री है, तो व्हाई नॉट हैव अ सप्लायर सिस्टम जिसमें सप्लायर की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, और जैसी कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करनी हो आप वहीं पे क्लिक कीजिए
ऑर्डर कर दीजिए। एंड दैट इज व्हाट बाजार हैज डन बाय द वे। जो अभी हम बात कर रहे थे ना बाजार की, दिस इज व्हाट दे हैव डन। बजाय इसके कि सप्लायर जाए और बार बार पूछते रहे आपका क्या ऑर्डर है, आपका क्या ऑर्डर है, आपको ऑर्डर करना है, यू विल जस्ट गो टू द ऐप एंड यू वुड क्लिक ऑन द थिंग्स दैट यू वांट एंड यू वुड ऑर्डर। ठीक है। ये क्या है? ऑर्डर ट्रैकिंग। ऑर्डर ट्रैकिंग आप देख सकते हैं, आप आज भी बहुत सारी जो शिपिंग कंपनीज हैं, ट्रैकिंग कंपनीज हैं, लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, ये दे गिव यू द फैसिलिटी टू ट्रैक द ऑर्डर। आप अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं। आपने कोई पार्सल भेजा टीसीएस के थ्रू, यू कैन ट्रैक द ऑर्डर। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। ट्रैकिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विद योर ऑर्डर। ठीक है। 500 जूतों का कस्टमर ने ऑर्डर दिया था। कितने जूतों का? सॉरी, 1000 जूतों का। कस्टमर की बात कर रहे हैं, कौन है यहाँ कस्टमर? अरे यहाँ कस्टमर कौन है? वो भाई वो रिटेलर कस्टमर है ना, जिसने ऑर्डर दिया है 1000 जूतों का। वो उसको भी एक एक्सेस मौजूद है सिस्टम का। वो सिस्टम में लॉगिन करता है जस्ट टू सी कि उसका ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा। जैसे आप टीसीएस में कोई पार्सल टीसीएस करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है ना, ट्रैकिंग नंबर जिसको कहते हैं। आप वो नंबर उनकी वेबसाइट पे एक मॉड्यूल मौजूद है, उसमें इंसर्ट करते हैं, उसमें डालते हैं, ट्रैक करते हैं, तो वो आपको लोकेशन बता देता है कि आपका पार्सल कहाँ तक पहुंचा। कस्टमर के पास इसी तरह से एक इंटरफेस मौजूद है। उसने अपना ऑर्डर नंबर उनकी वेबसाइट में मौजूद एक मॉड्यूल में डाला। उसने देखा कि उसके ऑर्डर के 250 of the 500 pairs of shoes coming from Taiwan have been made and dyed। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये बात समझिए जरा। उसने सिस्टम में लॉगिन किया, उसने देखा कि एक तो ये कि 500 शूज जो है वो तो आ रहे हैं ब्राजील में फैक्ट्री से आ रहे हैं। एक चीज उसने ये देखी। दूसरी चीज उसने देखी कि वो जो 500 जूते ताइवान की फैक्ट्री में बन रहे हैं, उसमें से 250 बन चुके हैं। दोबारा से कहता हूं मैं ये बात। उसने सिस्टम में लॉगिन करने के बाद ये देखा कि वो जो 500 शूज ताइवान की फैक्ट्री में बनने हैं, उसमें से 250 बन चुके हैं। उसमें से 251 बन चुके हैं, 252 बन चुके हैं, 260 बन चुके हैं, 270 बन चुके हैं। इसका मतलब क्या है? यानी as soon as a shoe is being made and the process is completed। अच्छा, एक नहीं होता शू, ऑब्वियसली बैचेस में बन रहे होते हैं। the system is updated so that the customer is aware of the order। बिल्कुल उसी तरह से जैसे टीसीएस पे आप पार्सल करते हैं, मैं दोबारा वो एग्जांपल दूंगा। वो एयरपोर्ट पे पहुंचता है, आपके सामने आता है एयरपोर्ट, वो अगले एयरपोर्ट पे पहुंचता है, वो कहता है अगले एयरपोर्ट पे, वो किसी पर्टिकुलर जगह पे होता है। अच्छा, वो बेसिकली एक डिस्क्रीट फॉर्म में आपको बता रहे होते हैं। ठीक है। बहुत सारी कंपनीज ऐसे करती हैं जो कंटिन्यूस फॉर्म में बता रही होती हैं। यानी वो आपको गूगल मैप पे बता रही होंगी कि आपका ऑर्डर इस वक्त यहाँ है, फिर वो ट्रैवल करते हुए कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो सारी चीज़ें बता रही होती हैं। जैसे कार ट्रैक कंपनीज है, कार ट्रैकिंग कंपनीज अगर आपने देखी हो तो वो कार ट्रैकिंग आपको मुकम्मल प्रोवाइड करते हैं ना। ये जो ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं, उबर, करीम, ये भी आपको कार ट्रैकिंग की फैसिलिटी कंटिन्यूस बेसिस पे प्रोवाइड करती है ना। दे आर नॉट डिस्क्रीट। फर्क समझते हैं ना? So the customer also sees, अच्छा, now that he logs into the customer's portal, he also sees that there are 500 pairs of orange tennis shoes in stock and places of a follow-up order on the net। वो Amazon आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, Amazon.com बुक स्टोर एंड द ई-कॉमर्स स्टोर नाउ। उसमें क्या होता है, आप एक बुक ब्राउज करते हैं, आप एक बुक सर्च करते हैं, तो उसके साथ ही नीचे एक टैब आ जाता है, एक कस्टमर हु सर्च्ड फॉर दिस बुक
also searched for these books. The customers who bought this book also bought these books. What is it basically? ये क्या है? They are trying to convert a potential customer into a customer. This is a CRM related thing. लेकिन ARV में भी इस तरह की चीजें अब मौजूद हैं कि कस्टमर जो कोई और चीज देखने आया है, आप उसको वो चीजें दिखा रहे हैं जो कि किसी और कस्टमर ने वो चीज जो आप देखने आए हैं उसके साथ खरीदी. So that you are trying to increase your chances of selling that product. ठीक है, तो कस्टमर ने जब अपना ऑर्डर देखने के लिए टैपिंग किया SAP R3 में, तो उसके सामने बना हुआ नजर आया कि जी ये 5 तुमने तो पर्पल टेनिस शूज का ऑर्डर किया था ना, ये ऑरेंज टेनिस शूज हैं, ये भी अवेलेबल है. अच्छा, अब हमें नहीं पता क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका, हो सकता है विंबलडन की चैंपियनशिप हो रही हो और टेनिस शूज वो किसी प्लेयर ने वही फ्लोरेसेंट कलर के टेनिस शूज पहन लिए हो, या एक फैशन आ जाता है ना कि बस अब ये इस तरह के शूज हैं, इस तरह के, हो सकता है ऐसा हो. तो उसने ऑरेंज टेनिस शूज भी देखे, उसने कहा यार ये डिमांड में चल रहे हैं, इसका भी ऑर्डर कर दो, वो उसका भी ऑर्डर प्लेस कर देता है. तो अगेन R3 आपकी सेल को एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपकी सेल को बूस्ट करने का भी काम कर रहा है, एंड ऑल्सो कन्वर्टिंग अ पोटेंशियल कस्टमर इनटू अ कस्टमर. ठीक है. अच्छा, अब ये तो हो गई बात सारी कस्टमर एंड की और ऑर्डर प्लेसमेंट एंड की और ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड की. ऑर्डर फुलफिल हो रहा है. ठीक है. अच्छा, अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा देयर इज अ प्लानिंग मॉड्यूल एज वेल. ठीक है, ये है प्लानिंग. There's a planning module as well based on the data from R3's forecasting and financial modules. There are forecasting modules as well. There are financial modules as well. The CEO sees, because the CEO is able to see and dig into all the data that they want to, he sees that the colored sneakers are not only in hot demand but are also highly profitable. यार कलर्ड स्नीकर्स जो हैं वो एक ऑर्डर 1000 जूतों का आया, एक 500 का आ गया, उसके साथ ही और लोगों ने भी ऑर्डर्स किए हुए हैं. फ्लोरेसेंट स्नीकर्स, दे आर नॉट ओनली इन हाई डिमांड बट दे आर ऑल्सो इन ऑल्सो गिव्स अस हाई प्रॉफिट. वो क्या करता है, ही डिसाइड्स टू ऐड अ लाइन ऑफ फ्लोरेसेंट फुटवेयर. वो कहता है कि यार डिमांड बहुत है, बजाय इसके कि ऑर्डर आए और हम बनाएं, लेट अस ऐड अ प्रोडक्ट लाइन ऑफ फ्लोरेसेंट फुटवेयर. पहले से बना के रखते हैं, यानी फैक्ट्री जिस वक्त खाली पड़ी होगी, ऑर्डर नहीं होगा, हम क्या कर रहे होंगे, बना रहे होंगे फुटवेयर फ्लोरेसेंट कलर के, so that we can advertise this to the people who order us shoes and they can buy it. Just like one retailer bought 500 pairs of orange shoes, orange tennis shoes. क्लियर हो रही है बात? अच्छा, तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग प्रोसेस है, हमने अभी ये पूरी डिस्कस कर रही थी वैसे जो सप्लाई चेन है, लेकिन जो फोरकास्ट है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस फ्रॉम फोरकास्ट टू सेटलमेंट. सेटलमेंट हम कहते हैं ऑर्डर सेटलमेंट, जब हो जाए ऑर्डर फुलफिल हो जाए तब उसको, ये इनमें से हर एक पूरा प्रोसेस है. ठीक है, देयर इज अ फोरकास्ट, यानी मैंने ये डिटरमिन किया, हमने पहले एग्जांपल लिए क्लास में कि अगले साल बारिशें बहुत होंगी फॉर एग्जांपल, दिस इज अ फोरकास्ट. ऑब्वियसली आई नीड टू डू समथिंग फॉर दैट फोरकास्ट, वरना तो वो सिर्फ फोरकास्ट ही है ना. बारिशें ज्यादा होंगी और मैं छतरी बनाता हूँ, मेरी कंपनी है छतरी बनाने की, तो भाई मैं ज्यादा छतरियां बनाऊँ, ज्यादा मार्केटिंग करूं छतरियों की. ठीक है, यानी जैसे अब रमजान आने वाले हैं, तो आपने देखा होगा टेलीविजन पे जिस तरह के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है, वैसे देख के तो खैर ऐसा लगता है कि रमजान नहीं आ रहा है, कोई फूड फेस्टिवल शुरू होने वाला है. और इसी तरह के ऐड आ रहे हैं ना, रूह अफ़ज़ा ले लो और टैंग ले लो और पता नहीं क्या क्या. तो लेकिन ऑब्वियसली दे हैव दिस फोरकास्ट के रमजान में इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है. ठीक है, तो दैट इज व्हाई दे हैव दिस सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग, एसओपी. एसओपी क्या, सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग के सेल्स. और जब वो ऐड दे रहे हैं, तो बिकॉज द सिस्टम इज इंटीग्रेटेड, दे वुड नो कि इफ देयर एडवर्टाइजमेंट इज एबल टू गेट द कस्टमर अप, टेक हिम टू द शॉप एंड आस्क the shopkeeper for that particular product, that product needs to be there. ऐसा ना हो कि मेरा इश्तिहार कस्टमर को घर से उठाए दुकान तक लेके जाए, दुकान पे जाके मेरी प्रोडक्ट मांगे तो मेरी प्रोडक्ट हो ही नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना तो सारी चीजें ज़ाया होंगी.
ठीक है। तो एसओपी सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग, फिर देयर इज दिस डिमांड मैनेजमेंट, किस एरिया में कितनी डिमांड है, किस एरिया में कितनी डिमांड है, कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड किस जगह पे है। यानी मैं कंपनी हूं, मैं तो 4 लीटर का भी एक तेल का डब्बा बनाता हूं, 3 लीटर का भी बनाता हूं और पाउच भी बनाता हूं। ठीक है, तो मैं पाउच तो दे दूं क्लिफ्टन और डिफेंस के बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, और 4 लीटर और 3 लीटर के डब्बे दे दूं ऐसे एरियाज में जहां पे लोग वो खरीदते ही नहीं। ऑब्वियसली इट वुड बी नॉट फुलफिलिंग द डिमांड प्रॉपरली। मुझे ये पता होना चाहिए कि किस एरिया में मेरी कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। तो दैट इज व्हाट डिमांड मैनेजमेंट इज। एमपीएस इज मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग मैंने आपको पहले बताया था कि जो मटेरियल्स रिक्वायरमेंट्स या मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कितनी डिमांड है, उसके बाद प्रोडक्शन को किस तरह से स्केड्यूल करना है। ठीक है, डिमांड की बेसिस पे प्रोडक्शन शेड्यूल होगी ना, यानी कि बस यानी या अगर मुझे पता चल गया डिमांड बहुत है, बस मैं प्रोडक्शन शुरू कर दूं बगैर ये देखे कि कितनी डिमांड है, तो ऑब्वियसली ये बेवकूफ़ी होगी मेरी तरफ से। फिर एग्जीक्यूशन है इन सब चीज़ों की, एंड देन ऑर्डर सेटलमेंट है। तो अगेन दिस इज द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस, जो कि ईआरपी क्योंकि डेटा अवेलेबल होता है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हैं, एक ऐसे प्रोसेस में है जो कि बड़ा री इंजीनियर्ड है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये सारी चीज़ें किसी के लिए करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन प्रोसेस, फोरकास्टिंग, वी टॉक्ड अबाउट दिस बाय द वे। ठीक है, utilizes data from sales information system as well as profitability analysis. The output of forecasting activity becomes the input for sales and operation planning. दो तरह से हो सकती है। ठीक है, एक तो ये कि मैं डिमांड डिटरमिन करके ऑर्डर्स को फुलफिल करूं। क्या? डिमांड को डिटरमिन करके ऑर्डर को फुलफिल करूं। भाई डिमांड है, मैंने प्रोडक्शन, जैसे ऑर्डर आया 1000 जूतों का, मैंने जूते बनाने शुरू कर दिए। दूसरा तरीका ये है कि मैं जूते बना लूं और उन जूतों को बनाने के बाद मार्केट में सेल करने की कोशिश करूं थ्रू मार्केटिंग। एक कहलाती है पुल स्ट्रैटेजी और एक कहलाती है पुश स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी जिसमें मैं ऑर्डर ले रहा हूं और ऑर्डर फुलफिल कर रहा हूं, इसको क्या कहेंगे? पुल स्ट्रैटेजी। ठीक है, अच्छा, अब ये पुल मार्केटिंग भी होती है, पुल बेस्ड कस्टमर रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट भी होती है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये कहलाती है पुल स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी क्या होती है? मैंने प्रोडक्ट बना ली, अब मैं प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता हूं, मार्केट में नीड अराउजल करता हूं उस प्रोडक्ट की, और उसके बाद उसको सेल करने की कोशिश करता हूं। मार्केट में नीड नहीं है, लेकिन मैं नीड क्रिएट करूंगा थ्रू माय टैक्टिक्स, थ्रू माय एडवर्टाइजमेंट्स, थ्रू माय मार्केटिंग। क्लियर है? अच्छा, इन प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस मॉनेटरी टर्नओवर गोल्स आर सेट एंड बजट्स आर डिटरमाइंड सो दैट दीस गोल्स कैन बी रीच। तो जो फोरकास्टिंग है, जो मॉनेटरी मैनेजमेंट मॉड्यूल्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस मॉड्यूल्स हैं, ये सारे हेल्प करते हैं ईआरपी में, ईआरपी के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड मैनेजमेंट। वी हैव टॉक्ड अबाउट a lot of these things, material resource planning, manufacturing process, right? So this is what ERP is all about, right? कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप कर सकते हैं। कोई चीज जो आपको क्लियर ना हुई हो अभी तक? सब क्लियर है? कोई सवाल नहीं है जी? फोरकास्टिंग हम प्रेडिक्शंस को ही कहते हैं ना, फोरकास्ट का मतलब हाँ, ये एक ही चीज है, फोरकास्टिंग, प्रेडिक्शन। बट ऑब्वियसली फोरकास्ट बेहतर उस वक्त होती है जब इट इज डेटा बैक्ड, डेटा बेस्ड हो। आप कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान कल का, आज का मैच जीत जाएगा, अब ये क्या है? ये फोरकास्ट है, प्रेडिक्शन है, क्या है? बस ये आपका दिल कह रहा है। ठीक है, लेकिन इसी चीज को अगर आप डेटा बेस्ड कर देंगे, आप कहेंगे कि यार पाकिस्तान लेट से लास्ट 5 सालों में अगर 3 मैचेस का कोई टूर्नामेंट हुआ है तो उसमें हमेशा आखिरी मैच जीता है, तो चलेंगे, डेटा बैक हो जाएगी कोई चीज। आप कहें कि पाकिस्तान
जब भी साउथ अफ्रीका में इस ग्राउंड पे खेला है तो आज तक कोई मैच नहीं आ रहा, तो फिर ये डेटा बैक्ड हो जाएगी थोड़ी। ऑल दो ये भी कोई वो नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी हम इसी तरह से बात करते हैं ना, जैसे विन प्रिडिक्टर आ रहा होता है मैचेस में, तो वो विन प्रिडिक्टर बता रहा होता है कि इतने % चांसेस हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं से डेटा बैक होता है। जितना ज़्यादा डेटा होगा, आपने बैंक की एग्जांपल में देखा था ना, एटीएम में जितना ज़्यादा डेटा डालेंगे उतना बेहतर डिसीजन हो सकता है, उतनी बेहतर फोरकास्ट हो सकती है। ठीक है, किसकी? अच्छा देखो, मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि हम ईआरपी जो है ना, ईआरपी छोटा नहीं होता, ठीक है। ईआरपी में एक लफ्ज आ रहा है एंटरप्राइज, एंटरप्राइज छोटी नहीं होती, ये बात याद रखो। बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हर तरह से इंटीग्रेट कर देते हैं, सारे फंक्शनल एरियाज को इंटीग्रेट कर देते हैं, मगर वो एंटरप्राइज नहीं होती। एंटरप्राइज में और ऑर्गेनाइजेशन में फर्क है, जरा सा इसको डिटरमिन करना है, इसको पढ़ना थोड़ा सा कि क्या होता है। हाँ, ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकते होते हैं, ठीक है। तो ये जरा सा समझें। अच्छा, दूसरी चीज अब ये, आप लोगों को एक काम करना है, एक टास्क जो आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने टॉप 5 ईआरपीज जो इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं, उन टॉप 5 ईआरपीज के बारे में पढ़ना है, और उनके बारे में, हर एक के बारे में एक एक पेज की समरी लिखनी है। क्या करना है? टॉप 5 ईआरपीज, किसी को नाम पता है ईआरपी के, एसएपी सैप के अलावा? सैप के अलावा किसी को ईआरपी का नाम बताओ किसी? चलो, आई होप कि जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो आप लोग ये टॉप 5 ईआरपीज के बारे में पढ़ के भी आएंगे, असाइनमेंट भी करके लाएंगे। और असाइनमेंट आपको क्लासरूम पे ही जमा कराना है, मैं असाइनमेंट वहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, पढ़ के भी आएंगे, और जब मैं पूछूंगा तो उसका जवाब भी मुझे मिलेगा होपफुली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।